Hey, hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna give you the improvement of your English speaking at home. So how you can speak fluently, because I know that you have no English buddy partner, but you need to still learn English, right? So how you can get that expertise in English at home. So I'll give you some of the tips which I used when I was there, but again, this is for like very every person. So how you can get success to improve your IELTS English. But again, we are here to help you out for this journey. So if you are new on this channel, please do subscribe this channel and also share this video with your friends because we need your support, right? So now let's get started. Before that, if you are new on this channel for learning or speaking English, then definitely you need to subscribe our channel and also like this video and also give us a comment if you like our efforts too. So now let's get started with how to improve your IELTS speaking at home. So very first thing in today's video, I'm going to give you and show you to improve your English. So improve your English means many of the kids are students are really need to develop their English skills, right? But again, you have no source because India. So very first thing which I just wanted to point out here, that English needs the environment, right? So environment, like you everybody knows Hindi, Punjabi, and if you are belongs to Tamil, then Tamil language, and any other like which area or country or state you are belongs to. So you know very fluent language of basic language of that country or state or area, right? But English is forever used language. All the countries wherever you will go, they know English, they speak English. But again, for that you need the environment. So how you can create that environment, that is all up to you. Your IELTS, you can speak IELTS English at home, you can speak English at home, but during my free class, when I always give the free sessions to my students, many students tell me like they cannot improve their English because they don't have an environment at home, right, to talk, whom to talk to. So we can also, like, for us, for our side, because I'm conducting the free speaking session, nobody else, right? So in free speaking session we can give you the opportunity of like 40, 45, or 1 hour, not more than that. But again, if I'll give you some of the task over there, then definitely I'll expect in my next session you have to complete that task. For that task, what you need to do, you need to stay home, stay focused, stay work on that. So I want to show you it is possible to improve your English at home on your own for free. For that, now first thing I want to you to do is to get a list of topics, that is common topics, right, for IELTS speaking part 1, 2, 3, because in that way this will help you in two ways. First thing, you will improve your English, and if you are also going to appear in IELTS exam and you are preparing uh for your abroad study, then definitely it will help you out for their preparation. So that preparation too. So very first thing, you need to pick up the favorite topics, which is your favorite, because some people like shopping. For me, like, I like shoppings, right? Some people like crowd, some people like music, some people like the French, right? Friendships or friends. So these type of topics you need to, because IELTS is what, speaking is what, is just IELTS speaking test is what, is just for checking of your knowledge if you can speak or not, right? So in that way you need to start with your own choice of topics. जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है, you need to start with that. Okay, so जो आपका टॉपिक फेवरेट है, आप उस टॉपिक को लें, उसके ऊपर स्टार्ट करना शुरू करें, किस चीज़ को, स्पीकिंग को. So if you don't know any, तो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, so find a list, then go to my channel. Also you will find the list of part 1, part 2, part 3 topics, question answers and ideas. So important topic की मैं always list जो है अपने channel के ऊपर डालती हूँ, हर महीने डालती हूँ, हर 15 दिन के बाद डालती हूँ, because these are changed sometimes. जो भी usually बहुत ज़्यादा examiner पूछता है question, so I always discuss with my students and also get that topics and upload the video on my channel. So go
ahead and serve all that, and जो भी टॉपिक उसके अंदर है आप उन टॉपिक्स को पिक करें, उसके ऊपर अपनी वीडियो को बनाना शुरू, वीडियो बनाएं स्पीकिंग का। एक्चुअली वीडियो बनाने का नहीं है, आपको स्पीकिंग करने का है। सो आप यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग ऑन दैट। सो स्पीक करके आप क्या करेंगे, पहले तो आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करेंगे। हर लोग बोलते हैं कि आप दीवार के सामने प्रैक्टिस करें, लोग बोलते हैं कि शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद से अपने अंदर प्रैक्टिस करना नहीं शुरू करते हैं। सो यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन योर सेल्फ लाइक टुडे आई नीड टू गो टू द मार्केट, राइट। सो मार्केट जाना है तो आपको करना क्या है। सो वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू गेट रेडी, राइट। उसके लिए पहले रेडी होना है। सो एट व्हाट टाइम यू विल लीव द होम, सो उस घर को निकलने से पहले। तो इस तरह के जो बेसिक सेंटेंसेस है आपने वहाँ से शुरू करना है। जब आप वहाँ से शुरू करेंगे देन अपने आप आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपको सपोज मार्केट जाने का टॉपिक है, शॉपिंग करने का टॉपिक है, क्या खरीदारी करनी है आपको, वो टॉपिक है, या फिर कोई फेस्टिवल पास में आ रहा है, जैसे अभी हाल ही में जन्माष्टमी आके गई है, तो आप जन्माष्टमी के ऊपर क्या क्या किए थे, आप उस चीज़ की एक लिस्ट बनाएं। पहले हिंदी में बना लें या पंजाबी में बना लें, देन आफ्टर दैट यू शुड मेक क्वेश्चन योरसेल्फ। अपने आप से क्वेश्चन करें कि अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश के अंदर तो आप उसको किस तरह से जवाब देंगे। सो आइडियाज़ ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि मैंने बताया कि मेरी वीडियो के अंदर है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। सो नेक्स्ट व्हाट यू गोना डू यू विद दैट लिस्ट। सो उस लिस्ट को लेकर आपने करना है कि आपने सिलेक्ट करना है टॉपिक को, और उसी सिलेक्टेड टॉपिक को आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने स्पीकिंग करनी है। मैंने बहुत सी वीडियो ये भी देखी हैं कि आपने लोग बोलते हैं कि आप लिखें, आप लिख लिख के अपनी प्रैक्टिस करें। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि यू शुड राइट, राइटिंग इज़ बेस्ट। आप राइट करेंगे तो आपको एक प्रैक्टिस होगी, आपका दिमाग और हाथ एक साथ दोनों काम करेंगे, तो वो एक अच्छी आदत है। बट इन इन इनिशियल स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप, आई डोंट वांट टू आस्क यू अबाउट टू राइट यू फर्स्ट, आई ओनली वांट यू टू डेवलप द आइडिया। तो पहले सबसे पहले आपने आइडिया को डेवलप करना है। आइडिया डेवलप करने के लिए जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि जन्माष्टमी भी आके गई है, तो आपने उसके ऊपर क्या किया। सो यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग विद दैट कि आप सुबह उठे, फिर उसके बाद आपने क्या किया, आप नहा धो के तैयार हुए, बिना खाए पिए आप मंदिर जाके आए, मंदिर में माथा टेक के भगवान जी को, कृष्ण जी को झूला दे के आए। सो ये सब चीज़ें जो है आपने पहले तो फॉर्म करने लिए सेंटेंसेस के अंदर, राइट। सो इफ़ यू चूज़ अ टॉपिक लाइक, अगर आपने फिर चूज़ किया है टॉपिक होम टाउन, तो घर से शुरू करें कि आप कहाँ पे रहते हैं। सो वो जगह कहाँ किस किस जगह से क्लोज है, लाइक वो रेलवे स्टेशन से पास है या ट्रेन स्टेशन से पास है, तो कितनी दूर है, या पार्क है उसके आसपास में, आपके पड़ोस में कौन रहता है, आपके कोई विजिटर प्लेस है या नहीं है। अगर आप किसी को रेकमेंड करें आपकी सिटी के अंदर आने के लिए, तो वो कौन सी जगह होगी जहाँ पे आप उनको रेकमेंड करेंगे। सो दीज तरह के जो आपने सेंटेंसेस हैं उसको आपने लिख लेना है। लिख के उसके साथ फिर आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन डेवलप करने। सो अब आपको अपने घर के, अच्छा अभी घर के ऊपर आ जाते हैं। सपोज घर का टॉपिक जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, योर होम एंड होम टाउन टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक टॉपिक बहुत जो बच्चे बोलते हैं मुझे, दैट इज़ कंपैरिजन। कंपैरिजन जो है वो तो इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घर का, आपके होम टाउन का और विलेज लाइफ के अंदर जो घर रहता है उसका। वो मैंने बहुत सारी वीडियोस अच्छी अच्छी बना के रखी थी, बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ के साथ बना के रखी थी। यू शुड डेफिनेटली टेक द help from those videos. So विच इज़ योर फेवरेट प्लेस। तो आपके घर की जो घर के अंदर ही आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है। किसी को अपना स्टडी रूम बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुझे अपना ये कंप्यूटर टेबल और अपना स्टडी रूम का एक कॉर्नर बहुत अच्छा लगता है। पूरा रूम मुझे चाहे ना अच्छा लगे, बट एक कॉर्नर मुझे ज़रूर अच्छा लगता है, बिकॉज आई फील वेरी कंफर्टेबल वाइल सिटिंग ओवर देयर। जब मैं वहाँ पर बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं उनके साथ बात कर रही हूँ, बिकॉज इवन दो आई एम अलोन एट होम। तो मेरे घर में अकेली हूँ, पर फिर भी मुझे फील होता है कि जब मैं इसके सामने बैठती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मुझे सुनने के लिए, मेरे से बात करने के लिए रेडी बैठे हैं। दिस टाइप ऑफ थिंग्स फील्स राइट। मुझे अपने घर के अंदर मेरे रूम का जो एक टेबल है, साइड टेबल, तो वो सेटअप जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। कंप्यूटर सेटअप विद, इसके अंदर क्या है, मेरे पास 2 से 3 मेरे जो है स्क्रीन्स लगे हुए हैं, और मेरा कीबोर्ड है, माउस है, टेबल है, चेयर है, रोटेट होती है, आगे पीछे होती है। आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स। मैंने इसके ऊपर एक कोजी सा कंबल डाल के रखा हुआ है, उससे मुझे और सॉफ्टनेस, बैठने में बहुत बहुत मज़ा आता है उसके ऊपर। आई कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑन दैट चेयर। इफ मुझे कोई दिन के 24 घंटे भी उस चेयर के ऊपर बैठ के काम करने को कोई बोले ना, आई कैन डू दैट। दीज टाइप ऑफ थिंग्स आपको अच्छे से अपने घर के अंदर आपको क्या पसंद है। किसी को अपने रूम का, ड्राइंग रूम का सोफ़ा अच्छा लगता है, किसी को
ड्राइंग रूम के सोफे के आगे बैठ के टीवी देखना अच्छा लगता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू राइट डाउन इन देयर। सो इसके अंदर और क्या क्या चीज़, आप इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, मैंने 5-6 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर भी आपको बना के दिखाए हैं। सो अगर कोई फॉरेनर आपकी कंट्री या सिटी के अंदर आता है तो आप उसको क्या बोलेंगे। अगर आप बाहर जाते हो तो आप ये सोचिए कि आप कनाडा में पहुंच गए या ऑस्ट्रेलिया, जो भी कंट्री की आप तैयारी कर रहे हो जाने के लिए, चाहे आप अमेरिका आ रहे हो चाहे कहीं पे। जैसे मैं यहाँ अमेरिका आई थी तो मुझे लोगों ने पूछा था व्हाट इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ योर कंट्री, where you recommend us to go and visit that country. So I told them like, okay, I am from Chandigarh. Chandigarh itself is very beautiful, but again I will recommend you to go to Priyala because that is one of the best city where I just want to go and see the like वहाँ पे जो बहुत ही फोर्ट्स है, राजा के किले हैं, मुझे वो बहुत देखने अच्छे लगते हैं। पटियाला यूनिवर्सिटी के सामने एक बहुत सारा अच्छा सा एक बहादुरगढ़ का किला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। सो इस तरह से जो जो एक हिस्टोरिक टच देता है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपने हिस्टोरिकल म्यूज़ियम वाले जो कुछ पार्ट को भी कवर कर सकते हो। सो इस तरह से आप कौन कौन सी चीज़ों को रिकमेंड करेंगे, तो आपने वो चीज़ें जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन के पार्ट के अंदर आपने उनको बतानी है। सो उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, सो नेक्स्ट आपने इस तरह से अपने डेवलप करना है। तो सेकंड टॉपिक, आपने वोकेबलरी लिस्ट क्रिएट करनी है। तो उसके अंदर सबसे पहले, क्योंकि वोकेबलरी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर आइल्स एग्ज़ाम। वोकेबलरी जो है एक बिल्ड करती है आपके अच्छे मार्क्स को, जब आपने अच्छे मार्क्स जो है लेके आने हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर। सो व्हाट यू नीड टू डू हियर, यू नीड टू स्टार्ट विद द वोकेबलरी। तो वोकेबलरी के अंदर आपने करना क्या है, यू नीड टू सिलेक्ट द रेंज ऑफ वोकेबलरी हियर। सो जब हम अपने स्पीकिंग सेशन में जाएंगे दैट डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट द वोकेबलरी। अगर आपको मैं एक टॉपिक देती हूँ तो उसके अंदर आप कौन कौन सी वोकेबलरी यूज़ कर सकते हो। सपोज मैंने आपको एक टॉपिक दिया फैमिली का, तो फैमिली इज़ व्हाट, फैमिली क्या है, फैमिली के अंदर क्या क्या आप चीज़ें कंसीडर कर सकते हो। लाइक फैमिली इज़ अ स्वीट होम, स्वीट राइट, स्वीट होम, स्वीट होम आप ये बोल सकते हो। सो ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, जब आप फैमिली में ब्रदर सिस्टर और अपने जो भी क्लोज वंस की बात कर रहे हो, ठीक है। आप फिर उसके अंदर हारमोनी की बात कर सकते हो, आप उसमें फैमिली डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड की बात कर सकते हो, मेंबर्स की, जैसे कई मेंबर घर के अंदर बहुत अच्छे रहते हैं, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज की बात कर सकते हो। दीज टाइप ऑफ थिंग्स आप जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। नॉस्टैल्जिया जो है आपका, सो लॉन्ग रेंज ऑफ जो आपके पास्ट नेटिव प्लेस के साथ रिलेटेड जो है वर्ड्स उनकी रहती है, तो उसके साथ आप उसको ऐड करके, सो वोकेबलरी लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई भी टॉपिक चूज़ करते हैं। सो देयर आर होल रेंज ऑफ वोकेबलरी लिस्ट यू कैन बिल्ड एंड इम्प्रेस द एग्जामिनर इन दैट टॉपिक। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जैसे कि आप होम टाउन की बात करते हैं राइट, और कंपैरिजन की बात करते हैं। तो आप जब इन टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हो तो आपको करना क्या है, तो आपको एक रेंज कलेक्ट करनी है कि इसके अंदर मैं क्या क्या वोकेबलरी वर्ड जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ नंबर 2। थर्ड जो आपको जिसके ऊपर अभी आपको काम करना है वो है आपका रिकॉर्ड योर आंसर्स। जब आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है राइट, सो हियर आपको ये टिप क्या है, तो टिप नंबर 3 जो है आपको करना है क्या है प्रिपरेशन के लिए। सो टेक योर फ़ोन, अपना फ़ोन लीजिए, आपको शीशे के ऊपर आगे खड़े होकर बोल बोल के प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपकी प्रैक्टिस एक टॉपिक पूरा हो जाता है तो आप उसकी आप शुरू करिए रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग से आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड योर सेल्फ रादर देन राइटिंग। सो राइटिंग के अंदर आपका बहुत टाइम चला जाएगा, बट रिकॉर्डिंग के अंदर आपका इतना टाइम नहीं जाएगा। सो आंसर को जब आप रिकॉर्ड करेंगे अपने, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने ये भी देखना है, इससे दो दो चीज़ें आपकी जो है ठीक होगी। एक तो ग्रामर, एक आपको पता चलेगा जब आप सुनेंगे कि आपने कितने वोकेबलरी की रेंज के वर्ड्स जो है, रेंज के वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं अपनी किसके अंदर, अपनी आपने स्पीकिंग के अंदर। सो यू यू ऑल्सो मोर you can also think more about the vocabulary while using your speaking, recording your speaking, because recording जो है वो आपकी कभी ख़त्म नहीं होएगी जब तक आप उसको खुद से इरेज नहीं करेंगे। सो whenever you hear that, then you every time you can find, okay, here I can use this vocabulary word, I can use this vocabulary word. So instead of that कि आप राइटिंग करें और उसके बाद फिर उसको चेक करें, you need to start doing practice yourself and record yourself. If you need that, then you can also send that small recordings like to me, or we can also go over your
स्पीकिंग सेशन, राइट? सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स को लिखना है, उसको दूर करना है. इफ़ यू कंफ्यूज समवेयर देन डेफिनेटली reach out to us. So we are here to help you all, but it is very very important for your improvement. Now नंबर 4 इज़ लिसन टू योर आंसर. अपने आंसर को आप ज़रूर सुने एक बार रिकॉर्ड करने के बाद, कितना फ्लुएंसी के साथ आपने उसको बोला है, कितने फ्लुएंट आप थे, वोकैबुलरी की रेंज कितनी आपने यूज़ की है, आपने कितनी कॉन्ट्रैक्शंस उसमें दी है. लाइक ऑफ कोर्स I can do that. Of course, I went there. Of course, that place is, or sure. Of course. Well, so these kind of opening words, आपने कितने इसमें opening words आपने यूज़ किए हैं. So इस तरह से आपको पता चलेगा कि और प्रोनाउंसिएशन आपकी क्या रही है, एक्सप्रेशंस आपकी क्या रही है. एक्सप्रेशंस आर रियली रियली मैटर्स इन इंग्लिश व्हेन यू आर डूइंग योर इंग्लिश प्रैक्टिस. यू नो व्हेन लाइक आप हिंदी और पंजाबी के अंदर जब आपको कुछ सरप्राइजिंग वाली चीज़ मिलती है, आपकी आंखें भी फटी हुई रह जाती हैं और आपके वॉइस पे होते हैं, ओह अच्छा ऐसा हो गया सी, लाइक दिस, राइट? सो आप जो एक्सप्रेशंस हिंदी और पंजाबी में देते हो, तो वही एक्सप्रेशंस आपको इंग्लिश के अंदर भी लेके आने, लाइक ओह वाओ that thing was happened, when this thing was happened, oh why you did not tell me, I will be there, I can be there, why you are not letting me know this was happening or this thing is going to happen. So these kind of things आप वो यहाँ पे जो है include कर सकते हो, like expressions, right? Each one of the examiner is 25 percent marks of your it's equal, and it's very very equal. जो 25% मार्क्स जो है आपकी फ्लुएंसी के रहते हैं, वोकैबुलरी के रहते हैं और ग्रामर के रहते हैं, और उसके अंदर प्रोनाउंसिएशन आप कितनी यूज़ कर रहे हो, दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस लिसनिंग. सो आपने उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम को जो रेडी करना है. सो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट 4 टिप्स जो थे, मैंने इससे बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, बट दिस इज़ my 4 tips which I used when I was preparing my IELTS when I was at India, and now I'm here, well settled here, so in America. So it is really really very important. आप आने से पहले अपनी अच्छे से तैयारी करके रखें, because here when you will come here then definitely you will feel, once you will feel alone, because the country like in America. But I know, I remember one of my cousin, and he was saying that in Canada is like a mini Punjab, right? You can find the people who speaks Hindi or Punjabi over there, and they can understand you. But the country, like in America, the country where I am, the city where I am living, you can barely find the Indian people here. Even though if you find the Indian people, then they are from the south side, their people always speak in English, then definitely you will again struggle to talk to them, because they only understand English. They will, sometimes they can speak in Hindi, but they can barely understand Hindi. So you need to definitely talk to them in Hindi. So the area where I lived, their people are also from South Indian, so they are also speaking in English. And again, you need to understand, you need to, if you make your friends, then you need to create that environment for English speaking environment, so in that way you can have some more learning experience, I can say, and speaking experience also, I can say. So stay with me if you like this video, and also if you want to do free speaking sessions with me, then definitely again I will ask you subscribe this channel and also stay with me for free English speaking. Yes, if you want to improve your free English speaking, then stay with me and also get the English speaking tips and tricks from me, and also learn your English. So today I'm going to start with my first live speaking session. So this is, I will send my invite in the WhatsApp group, then you can also stay with me in Indian time के अकॉर्डिंग. मैं 9:30 तक ऑनलाइन होंगी और 9:30 हम ऑनलाइन होंगे. बट इन अमेरिकन टाइम के हिसाब से अगर आप बाहर भी हो कहीं पे, तो आप मैच कर लीजिए, यहाँ पे उस टाइम 9 बजे होंगे सुबह के, और आपके वहाँ पे रात के. सो यूजुअली आई विल स्टार्ट डूइंग माय स्पीकिंग सेशंस विद इन द पास्ट इन द अदर ग्रुप्स with online with my students outside from America. They are in इंडिया. बेसिकली जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे वो इंडिया से ही थे, तो उनके साथ मैं यही 9:30 10 बजे के आसपास जो है मॉर्निंग के अंदर मंडे और ट्यूसडे को बात करती हूँ, और सैटरडे और संडे को सुबह, क्योंकि सैटरडे संडेज मोस्टली आपकी क्लासेस नहीं रहती हैं, तो मैं सुबह
चार या 4:30 बजे ऑनलाइन होके आधा घंटा की उनसे बात करती हूँ, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज आई नो सैटरडेज आर बिजी फॉर एवरीबडी। सो मंडेज एंड ट्यूसडे 1 घंटे का सेशन रहता है और सैटरडे को 30 मिनट्स का रहता है। सो वी विल टॉक मोर इन दैट इन देयर। So thank you very much for watching this video. I will be definitely keep in touch with you, and also if you need any help support, please write down in the comment section. Please do subscribe and share this video. Please do like this video. That is again only thing I needed from you, because I'm running this free speaking session. I want that people like you, they can get the advantage and get the benefits from my videos. So this is all my goal, to spread and help the people who needs my help. Thank you very much for watching this video. Only your support can reach me out there with those students who needs my help. So please like and share this video with your friends who really wants to speak, learn and speak English at speak learn and speak in English at home. Thank you very much for watching this video, and best of luck for your IELTS exam.